Hey guys, welcome back to your channel Navyug. Well, let me inform you that Navyug is registered under Societies Act 1860 and it is a non-profit organization which is working for the promotion of education in India. So basically we are assisting candidates, students for preparing for different competitive exams, to prepare them for interviews. We are promoting financial literacy. So we have on our channel, through this platform, we invite different professionals including bankers and people from different fields to share their experiences and help you in your preparation or your goals. Today we have an expert from the field of banking who will help you and guide you in related questions to credit. This video is going to be extremely useful if you want to understand what credit is all about, especially if you're planning to join any bank as a specialist officer credit. This video is for you. I'll request you to please subscribe to this channel, please like this video and stay tuned till the end of this video to learn about what credit is all about. Hello, good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Okay. First of all, I would like to introduce myself. My name is Azad Sharma. Azad Sharma. Currently, I'm working in Punjab National Bank as a senior manager. Sir, your And voice is breaking. hello, Hello. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, I would like to introduce myself. My name is Azad Sharma, and currently I'm working in Punjab National Bank as a senior manager, and I'm handling corporate credit portfolio. As far as my experience is concerned, working, I've been working with Punjab National Bank from last 8 years. Before this, I have been working with ICICI Bank for 2 years as a credit analyst. And as far as my education is concerned, I have a BTech from computer science. After that, I have done MBA in banking and finance from Manipal University and joined banking sector. Okay. So, are you guys comfortable with my voice or is there an issue? It's fine. Comfortable, sir. Okay. So, as as all of you are going for the interview for credit officer portfolio profile. So first of all, I just want to know it. I just want to tell that it will be an interactive session only. Means I don't want to teach you anything because this is not fruitful for you. The main thing is that you should have what sort of question uh, will be there, and you should know the basic idea about how how will you reply the questions related to credit, because in one session you cannot be expert of credit. सो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम लोग जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसका किस तरीके से हमें रिप्लाई देना है, कि कोई भी टर्म ऐसी ना हो कि इंटरव्यूअर को ये लगे कि इसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता है। द मेन थिंग कि डेप्थ में वो भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि उसके लिए आप लोग ऑलरेडी अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कर चुके हो। अब आपको मेन जो होगा जो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो उससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे क्रेडिट रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनी वन ऑफ यू कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बैंकिंग? एनीवन? Banking is a place where money is deposited and it pays to its lends to the borrower. Yeah, up to some extent it is quite well, but we can elaborate it like banking is a business of taking deposit from the public and for the purpose of lending and investment. Okay, मीन्स हम पब्लिक का जो डिपॉजिट्स है बैंक उसको लेते हैं और उस आगे फर्दर उसको लैंड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हमको मिलती है, उस इनकम से फिर हम इंटरेस्ट जो है वो जो डिपॉजिट है उसके जो भी इंटरेस्ट है उसको पे करते हैं, और जो बीच का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बैंक का प्रॉफिट होता है, उसी पर ही पूरी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो
सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। नॉट ओनली लेंडिंग एंड नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, बोथ आर required, lending and investment. So you are going for lending profiles for interview. Lending in the sense credit. So first of all, first question can be arise from here, that what is the income of a bank? So when we lend, we earn some interest, and when we take deposit we give some interest. So there is a difference between this earning and giving interest, which is called NIM, net interest margin name. This is the income of the bank. So here we will talk about lending. In case of lending, first of all, anyone please tell me how many type of lendings are there in a institute, financial institute like bank? Can anyone? Broadly, you can Sir, broadly commercial classify and retail. commercial and retail. Very good. You can say it retail or corporate credit. Sir, Fine. secured and unsecured loans. Secured and unsecured loans. Okay. So broadly, we can classify it in retail and corporate oblique commercial credit. Means corporate to commercial, same. So retail credit, simple up. Retail credit, like if we lend for a individual for personal need, housing need, for if he want to purchase any car or education loan, these kind of loans are retail loans. And if we talk about the corporate loan, then or commercial loan, then the loans or credit gives for the purpose of business related and business entities or business purposes. These credits are corporate credits. So basically you are banks are hiring all of you or the credit officer for the sake of corporate credit only, because retail credit is a, there is a simple algorithm set of rules. You can put data into the system, and system will automatically sanction the loans. Almost each and every bank in the banking system right now is having their modules, softwares, in which retail lending or retail loans, we don't need any sort of expertise in to lending retail loans, because there is a set of patterns. Like for retail loan sanctioning, you need 2 or 3 parameters like income, and secondary is credit scores, like which is CIBIL, Equifax, high mark. So the and third one is repayment capacity, and you can lend the loan. Okay. So एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है कि इंडिया के अंदर क्रेडिट स्कोर निकालने के लिए कितनी क्रेडिट एजेंसीज है जिससे आप किसी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। सो एनीवन, कोई भी मुझे बता सकता है कितनी है इंडिया में? 7 rating agencies. No, ma'am, actually, I'm not asking about the credit rating agencies. I'm asking about the credit score of an individual, CIR, Credit Information Report of an individual. 4, sir. 4. 4. Can you please tell me the name? Sir, CIBIL, Okay. Equifax, Okay. then one is Experian and Highmark. Very good. This is very, you should, all of you should aware about this. First one is CIBIL, then Equifax, then Highmark, then Experian. Okay. These 4 rating agencies provides the individual score, CIR, Credit Information Report, we generally said. So CIR score always used for retail lending, means high. Currently, the rate of interest is directly linked to the CIR. Many of the banks provide this facility. Like if you having a CIBIL score or high mark score more than 800, then banks will give you much lower interest in housing loan, car loan, personal loan, any segment. Right now I'm talking about retail loan only. So whenever interviewer asks you the type of credits generally broadly classified into the banking system, you can say the retail loan and corporate loan. Retail loan, you all of you know, housing loan, car loan, education loan, personal loan, gold loan. These kind of loans are retail loans. Means all of you, I think all of you know about these type of loans, and we don't need
such many expertise in these kinds of loan sanctioning. So second part is corporate lending or corporate loan or commercial loan. These kind of loans required specific specialization for which all guys are hired, and banks are hiring credit officer, credit manager for this post. So if we talk about corporate credit, so can you please tell me that in how many type of corporate credits are there? Anyone? Fund based, जो non भी आपके fund दिमाग, based. फंड बेस एंड नॉन फंड बेस, वेरी गुड। फंड बेस क्या होते हैं और नॉन फंड बेस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? सब फंड बेस में सर मूवमेंट ऑफ फंड्स होती है, एंड ठीक है, नॉन फंड बेस में हमें गारंटी देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। ओके, वेरी गुड। बेसिकली फंड बेस कॉर्पोरेट क्रेडिट में हम दो तरह की फैसिलिटीज ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो हमारी फैसिलिटीज होती है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। जैसा कि नाम में ही लिखा है, नेम इटसेल्फ सेज फंड बेस्ड मींस बैंक का फंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, हम डायरेक्टली किसी पर्सन को बैंक पैसा देता है, वो फंड बेस्ड फैसिलिटी है। नॉन फंड बेस्ड में एज सच बैंक का फंड उस समय इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बट मे बी इन फ्यूचर बैंक को अपना फंड लगाना पड़े, लेकिन ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन और डिसबर्समेंट कोई भी बैंक का फंड इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जब आपको इंटरव्यूअर के सामने, अब देखिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो क्रेडिट इतना वास्ट है, क्रेडिट का जो हमारा क्रेडिट के बारे में अगर आप बात करें तो इसका कोई एंड नहीं है, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो जैसे ही आप बात करेंगे टाइप ऑफ क्रेडिट, सर रिटेल क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट में आपने बोल दिया फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, तो उसका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या क्या होती है या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या क्या होती है। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए फंड बेस्ड फैसिलिटीज। तो फंड बेस्ड फैसिलिटीज आप ही लोगों में से कोई बताइए कौन कौन सी होती हैं? सर Cash credit, सीसी, overdraft, Cash credit, overdraft, एंड term loan, Sir, bill of term exchange, loans, bill of purchase. bill of exchange. ओके एंड ओके, सो फंड बेस्ड फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इस तरीके से बोलने से अच्छा आप उसको एक टर्म बोलिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ओके, वर्किंग कैपिटल के पार्ट्स होते हैं सीसी, ओडी, वो किस तरह की फैसिलिटी देनी है वो डिपेंड करता है हमारा टाइप्स ऑफ बोरोवर कैसा है, कि उसको हमें कैश क्रेडिट देना है या ओवरड्राफ्ट देना है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप अगर सीसी, ओडी, टीएल, आप ये बिल्कुल सब फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए सीसी और ओडी दोनों वर्किंग कैपिटल के पार्ट हैं। कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अराइज हो सकता है यहाँ से कि सीसी और ओडी में क्या डिफरेंस होता है? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन सीसी और ओडी में क्या डिफरेंस है? सर सीसी में डेबिट बैलेंस होता है और ओडी में क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, सर सर सीसी सर डेली सीसी जो है वो वर्किंग स्टॉक नीड्स के के लिए ऊपर दी होता है। जाती है। हेलो हाँ सर बोलिए, सीसी किस पे दी सर, जाती है? सीसी जो है वो स्टॉक के ऊपर दी जाती है, और जो बिल्कुल ओडी होती है वो इधर सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। बिल्कुल सिक्योरिटी सही, उसमें इधर जो बिल्डिंग्स हो सकती हैं या मशीनरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए आप बिल्कुल हाँ सर बोलिए। सर सीसी डेली ओडी नीड्स के लिए होती है, वर्किंग नीड्स के लिए, और ओडी इमरजेंसी नीड के लिए होती है सर। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि सीसी और ओडी दोनों वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ही है। अब क्या होता है सर, जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसके अंदर जो हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी बिजनेस एंटिटी को देते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है ना, प्राइमरी सिक्योरिटी जो होगी वो या तो स्टॉक होगी या बुक डेट होगी, या फिर स्टॉक और बुक डेट दोनों होंगी। अब इसको इस चीज से ऐसे समझिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि कोई भी मान लीजिए टॉयज या कोई टॉय बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो टॉयज बनाती है बच्चों के। तो टॉयज बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, प्लास्टिक और इंग्रेडिएंट्स है वो सब खरीदने हैं, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। ठीक है, उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया बैंक से सीसी लेके, बैंक से उसने लेट से 1 करोड़ रुपए का सीसी लिया रॉ मटेरियल लेके, और उससे मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग करने में उसको 1 महीने का मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसने वो जो माल है, टॉयज हैं, वो मार्केट में बेच दिए। मार्केट में जाने के बाद उसको तुरंत वो पैसा नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिलेगा, तो वो पैसा उसका कुछ दिन के लिए उधार पे चला गया। मान लीजिए 50 लाख रुपए उसका
कैश में सेल हो गया, 50 लाख रुपए उसका क्रेडिट में सेल हो गया, तो 50 लाख के उसके बुक डेट खड़े हो गए। तो अब उसको अगला रॉ मटेरियल खरीद के फिर से माल बनाना है, लेकिन वो 50 लाख जब तक उसका उधार फंसा हुआ है तब तक वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा। तो उस 50 लाख के अगेंस्ट में बैंक उसको कैश क्रेडिट फैसिलिटी देगा, यानी कि वो जो उसके जितने भी बुक डेट्स हैं, जितने भी डेटर्स हैं, उस डेटर्स के अगेंस्ट में भी हम सीसी देते हैं और स्टॉक के अगेंस्ट में भी सीसी देते हैं। तो उस दोनों केस में जो कैश क्रेडिट हम फैसिलिटी दे रहे हैं उसमें हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक्स एंड बुक डेट्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ ओडी अगर हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सिंपल जनरली एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए दी गई फैसिलिटी होती है। इसमें भी बैलेंस आपका डेबिट में ही रहेगा, क्रेडिट में नहीं रहेगा, क्योंकि जब ओवरड्राफ्ट हमने किसी को दे दिया तो इसका मतलब उसने वो फंड यूज किया, तो बैलेंस उसका डेबिट में ही रहेगा। तो उसके उसमें हमारी सिक्योरिटी स्टॉक या फिर बुक डेट नहीं होता। ओवरड्राफ्ट के केस में हम सिक्योरिटी रख सकते हैं, जैसे कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने रखा। मान लीजिए कोई हमारा अच्छा बोरोवर है, कई बार ऐसा होता है कि उसका करंट अकाउंट हमारे पास है, करंट अकाउंट में वो बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है, अकाउंट में 50-60 लाख हमेशा रहता है। किसी दिन 50 लाख रुपीज उसके अकाउंट में है और चेक आ गया 50 लाख 10,000 रुपीज का। ठीक है, बहुत अच्छा रेपुटेड कस्टमर है हमारा। तो अब हम 50,10,000 रुपए का चेक, तो देखा जाए फंड इनसफिशिएंट के हिसाब से उसको हमें रिजेक्ट करना है। मगर अगर हमारा बहुत अच्छा बोरोवर है, ब्रांच मैनेजर के पास ये पावर है कि वो उसको 10,000 रुपए का टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट दे के उस चेक को पास कर सकता है। और ब्रांच मैनेजर, कस्टमर बहुत अच्छा है, कस्टमर बोलता है मैं बाहर हूँ अभी पैसे नहीं जमा कर सकता, सर आप मेरा चेक पास करा दीजिए। तो उस दिन क्या होगा, हम उसको टीओडी जिसको बोलते हैं टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, 10,000 का टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट देंगे तो 50,10,000 का चेक वो पास हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन ओडी फैसिलिटी। तो हमने क्या किया, 10,000 रुपए का उसको ओवरड्राफ्ट दे दिया। वो ओवरड्राफ्ट कल को कस्टमर आएगा जमा कर देगा, जो भी इंटरेस्ट है एक दिन का वो हमें वो पे करेगा। तो इस तरीके से ओवरड्राफ्ट की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट हो गया, या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है नॉर्मल। जैसे जिन बोरोवर्स के पास स्टॉक नहीं होता मगर उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बोरोवर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी देंगे। जैसे कि बहुत सारे केस में क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या होता है कि उनको स्टॉक मेंटेन करना बहुत मतलब टीडियस जॉब है, कि उनके 4-5 साइट पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम चल रहे हैं। कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम है, कहीं किसी चीज का काम है, तो फिर वो बैंक के पास वो स्टॉक को वेरीफाई कराना उसके लिए बहुत टीडियस और बहुत मुश्किल है। इन दिस केस वी विल ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर, और जो भी उसके बिल आउटस्टैंडिंग होंगे उसके अगेंस्ट में हम उसको जो भी उसको जरूरत होगी उसमें हम उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। तो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड ओडी। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सीसी और ओडी, मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया, आपको वहां पर इतना नहीं, आपको सिंपल जो जो 3-4 बुलेट पॉइंट्स हैं आप इनको नोट भी करते रहना, चाहे तो लिख लेना, बाद में आप इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा आपको कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है अभी कोई भी हो तो आप यू कैन आस्क। सर सीसी एंड फैक्टरिंग का डिफरेंस क्या है सर? क्या सर? फैक्टरिंग का एक रहता है ना सर, वो बिल लेके दूसरे बैंक में भी लोन ले सकते हैं ना अब हम? फैक्टरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए फैक्टरिंग में जो आपकी जो इनवॉइसेस होती है उसके अगेंस्ट में, मतलब सीसी में, देखिए सीसी बेसिकली हमने किसी को अगर लेट से 1 करोड़ रुपए का सीसी लिमिट दिया तो हम उसका उतने रुपए का एक अकाउंट खोल के सिस्टम में दे देंगे, तो उसमें जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो हम वो उसमें से उसको विड्रॉ कर सकता है और निकाल सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी है। फैक्टरिंग एक अलग केस है, उसके केस में पर्टिकुलर इनवॉइस देके जाती है। ठीक है सर। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपसे इंटरव्यूअर जो जब आप जा रहे हैं तो वो भी नहीं, वो भी ये लोग समझते हैं इंटरव्यू में कि आप लोग जो है कोई क्रेडिट एक्सपर्ट नहीं है। अभी आपको क्रेडिट एक्सपर्ट बैंक को बनाना है। बैंक विल टेक केयर ऑल ऑफ दिस, बैंक विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, और आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि अगर मैं कॉर्पोरेट क्रेडिट में जा रहा हूँ तो व्हाट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट्स आर देयर, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, एंड व्हाट टाइप ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटीज आर देयर, सीसीओडी मींस वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, टर्म लोन। एंड तो ये चीज अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी, किसका क्या है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। बस बाकी ये सब चीजें काम कैसे करती हैं क्या है, वो तो आप जब बैंक में आएंगे तो इजिली आप, वो बैंक भी समझता है कि ये चीजें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बता दी जाएंगी।
तो एज फार एज फंड बेस इज क्लियर, आई थिंक नॉन फंड बेस फैसिलिटी कोई बता सकता है कौन कौन सी होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक Letter of गारंटी। credit. Yes, bank Letter of guarantee, sir. credit, bank guarantees, buyer's credit or supplier's credit. सप्लायर्स क्रेडिट, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या होता है कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जैसा कि इसके नाम में ही है कि बैंक का कोई भी फंड इन्वॉल्व नहीं होता। तो जैसे बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी में हम, ये बैंक क्या करता है कि गारंटी इशू करता है कि ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर वी आर गिविंग दिस गारंटी टू दिस, अप टू दिस अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। लाइक अगर आप बैंक गारंटी वहां बोलते हैं तो अगला क्वेश्चन राइज हो सकता है कि बैंक गारंटी कितने प्रकार की या कितने टाइप की होती है। तो बैंक गारंटी फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, फाइनेंशियल बैंक गारंटी एंड परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। दीज टू बोथ बैंक गारंटीज आर नॉन फंड बेस्ड। मीन्स फाइनेंशियल में क्या होता है और परफॉर्मेंस में क्या होता है कि परफॉर्मेंस में हम उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर गारंटी देते हैं, और फाइनेंशियल में हम उसके फंड रिलेटेड चीजों से जो भी है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका, मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये रोड 5 साल तक चलनी है, ठीक है, उसने 5 ईयर का हमसे गारंटी लेके दे दिया कि विद इन 5 ईयर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। तो उस 5 ईयर के अंदर अगर उस रोड में कोई भी कमी या कुछ आएगी तो उस में जो भी गारंटी में अमाउंट होगा उस हिसाब से हमसे अगर डिमांड होगी तो ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बैंक विल पे। तो वो परफॉर्मेंस आधारित जो भी गारंटी होगी वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कहलाएगी। और फाइनेंशियल नीड के हिसाब से कोई होगी, मान लीजिए किसी ने कोई टेंडर भरा कुछ है, और टेंडर भरने के बाद कई बार होता है ना ऑक्शंस के लिए टेंडर भरने होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक गारंटी लिया, बैंक गारंटी लेने के बाद टेंडर भरा, टेंडर भरने के बाद उसको टेंडर मिल गया मगर वो टेंडर फुलफिल नहीं कर रहा है या टेंडर पे काम स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, जितने भी अमाउंट की बैंक गारंटी होगी वो सम बैंक उस वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बैंक से लेगा और बैंक उसको देगा। तो ये उसकी फाइनेंशियल ओब्लिगेशन को पूरा करने के लिए दी गई बैंक गारंटी फाइनेंशियल बैंक गारंटी होती है। तो ये इसके लिए भी हम सिक्योरिटीज रखते हैं, जनरली कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर कोई काउंटर गारंटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हम लोग लेते हैं। तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो ये हो गई हमारी बैंक गारंटीज, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो आप नोट करते रहिएगा और एक बार इंटरनेट से या कहीं से भी इसको डिटेल में देख लीजिएगा क्या है। बेसिकली क्वेश्चन बस यहीं से ही आएगा, कितने टाइप की होती है, इसका क्या काम होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जिसमें कि बैंक एक लेटर देता है कि अगर कल को इस पर्टिकुलर मेरे बोरोवर या मेरे कस्टमर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट करने में तो इसके बिहाफ पे मैं पेमेंट करूंगा। बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट दो टाइप के होते हैं, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, आईएलसी और एफएलसी। फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि हम यहाँ जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है इंपोर्टर इशू कराता है। इसकी एक बहुत बड़ी साइकिल है, अगर आप लोग पढ़ेंगे आगे तो आपको जब अगर आप बैंक में आते हैं तो या किसी ने CIB वगैरह किया हुआ है तो उसमें ये सब चीजें आपको डिटेल में मिलेगी कैसे एलसी का पूरा फ्रेमवर्क काम करता है। लेकिन बस आपको पूरा डिटेल में नहीं जानना, बस ये जानना है कि एलसी दो टाइप की है, आईएलसी और एफएलसी, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट आपका वहां यूज होता है कि जब इंपोर्टर कोई सामान या कोई भी गुड्स सॉफ्टवेयर कुछ भी चीज इंपोर्ट करता है तो जो एक्सपोर्टर दूसरे देश में बैठा है, मान लीजिए हम भारत में हैं, यहाँ से हमें चाइना से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, कोई भी रॉ मटेरियल, जनरली हम कुछ भी चिप्स माइक्रो चिप्स वगैरह मिलाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बोरोवर, आवर बोरोवर, बिकॉज कल को दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू होता है कि इंपोर्टर कहेगा कि पहले आप माल भेजो तब मैं पेमेंट करूंगा, एक्सपोर्टर बोलता है कि नहीं सर पहले आप माल भेज दीजिए, पहले पेमेंट कीजिए तब मैं आपको माल भेजूंगा। तो उस केस में ना इंपोर्टर को एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट है ना एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पे ट्रस्ट है। तो उन दोनों के बीच में ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, बोलता है सर मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, लेट से 10 लाख डॉलर का, $10 लाख का मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। मैं अपने एक्सपोर्टर को वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है, एक्सपोर्टर देखता है कि $10 लाख का पंजाब नेशनल बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है कि कल को ये इंपोर्टर अगर पैसा नहीं देगा तो बैंक उसके बिहाफ पे मेरे को पैसा दे देगा, उसको एक श्योरिटी मिल गई कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, वहां से माल अपना जो भी है उसको शिप कर देगा, यहाँ पर माल आएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, बैंक देखेगा सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, सब डॉक्यूमेंट्स अगर ऑर्डर में होंगे तो बैंक इंपोर्टर को कहेगा भाई $10 लाख दो,
इम्पोर्टर कहेगा सर सब चीज ठीक है मैं दे देता हूँ। अगर इम्पोर्टर डिफॉल्ट करता है, नहीं देता है, तो उसके ब्याह पर बैंक को बाद में वो $10 लाख एक्सपोर्टर को देने होंगे। तो इस केस में देखो आपको पता चला होगा कि एलसी में भी बैंक का फंड कहीं इन्वॉल्व नहीं था, जब तक इम्पोर्टर ने देने से मना नहीं किया। अगर इम्पोर्टर दे देगा तो बैंक का कोई रुपया नहीं लगेगा, एलसी क्लोज हो जाएगी। तो ये सब फैसिलिटी, ये इसका एलसी का फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर सर on this side, sir. क्रेडिट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से कैसे अलग है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU इज डिफरेंट थिंग सर। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या होता है कि एक बैंक गारंटी देता है कि तुम दूसरे बैंक से लोन ले सकते हो। मतलब हमने अंडरटेकिंग दिया अपने बोरोवर को कि जैसे क्या होता है, कई बार इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 8 या 9% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको क्रेडिट मिल रहा है, और किसी पार्टी का ओवरसीज या मान लीजिए लेट से यूके में उसका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट वहाँ है, तो वो लेटर ऑफ कंफर्ट एक बैंक से लेगा यहाँ सर, पंजाब नेशनल बैंक से, कि इतने अमाउंट तक की हमने उसको लेटर ऑफ कंफर्ट या LOU दे दिया। एक एग्जांपल 10, मान लीजिए $1 लाख का दे दिया, तो उतने अमाउंट तक का लोन वो किसी भी पीएनबी की या तो ओवरसीज ब्रांच से या वहां की कोई भी जिसका पीएनबी के साथ टाई अप होगा, जिस भी ओवरसीज बैंक का, उससे वो क्रेडिट वहां लेगा, और उस वहां पे क्योंकि क्रेडिट लेगा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उस केस में पीएनबी विल पे, ओके, उस LOU के आधार पे उसको वहां पे क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये सारी जो है ये भी एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है आपकी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ब्रॉडली ये बताना चाहता हूँ कि फंड बेस क्या है, नॉन फंड बेस क्या है, इनके अंदर के पार्ट्स क्या है। तो आपसे जब इंटरव्यूअर पूछे तो आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर हो, आपको ये ना लगे कि भाई ये क्या है। वो बेसिकली इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और इन डेप्थ आपसे कोई भी बिल्कुल नहीं पूछेगा। आप लोग अश्योर रहिए कि बिल्कुल आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मेरे को इसका वर्किंग स्टाइल वो बताओ या डिटेल्स क्या होती है। बस आपको, आपने उसको वन लाइनर आपको याद होना चाहिए, बैंक गारंटी, टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, बस उसकी वर्किंग कैसे है, वो सब आपको बैंक में आके बैंक विल ट्रेन यू। ओके, सो इफ वी टॉक और ऑफ, चलिए ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे सब मार्जिन्स या कुछ जो बोरोवर को रखनी होती है वो पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। मार्जिन के लिए देखिए, अभी अगर हम वर्किंग कैप, अभी हम फंड बेस की बात करते हैं सर, ठीक है। यस। फंड बेस्ड फैसिलिटी में हम सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश क्रेडिट, आप लोग सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। किसी को वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। किसी को भी अगर लगता है वर्किंग कैपिटल में क्या, कि कैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्यों हम इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, आप लोग सब लोग सर जानते बता हैं। दीजिए। अच्छा सर ठीक है। बता दीजिए। देखिए, कोई भी जब सर बिजनेस होता है, मान लीजिए हम कोई भी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। तो सर देखिए, हम मानते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक खाली पीस ऑफ लैंड है, मेरे पास प्लॉट है, यहाँ पे मेरे को एक प्लांट लगाना है जिसमें मैं स्टील के पाइप मैन्युफैक्चर करूंगा, ठीक है। तो सर जो मेरे को प्लांट लगाने के लिए पैसा चाहिए, जो मनी मेरे को चाहिए कि वहाँ मशीनरी लगेगी, तो मेरा साइट का डेवलपमेंट होगा, मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, मेरी बाउंड्री वॉल बनेगी, जितनी भी चीजें मेरी असेट्स क्रिएट होंगी वहां पे, जो मेरी मशीन है वो भी मेरी असेट्स है, जो मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी मेरा असेट्स है। ये जो असेट्स के लिए मेरे को पैसे की जरूरत होगी, ये सारा फैसला मेरे को मिलेगा टर्म लोन के रूप में। टर्म लोन होता है कोई भी फिक्स असेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो टर्म लोन मेरा हो गया, मैंने फिक्स एसेट क्रिएट कर लिया, यहाँ पर तक हो गया मेरा टर्म लोन। उसके बाद क्या होगा, जब वो मेरा मशीनरी, इस मेरा पूरा प्लांट लग के खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, उस प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। मतलब मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना होगा, रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करना होगा, प्रोसेस करके मान लीजिए मैं स्टील के पाइप बना रहा हूँ, पाइप बना के मुझे मार्केट में बेचने हैं। तो इस एक्सक्यूज मी, इस चीज के लिए जो भी मेरे को फंड की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल खरीदने से उसको मार्केट में बेचने तक के लिए, वो फंड मेरा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल फंड। वर्किंग कैपिटल मतलब मेरा काम करने के लिए जो मुझे कैपिटल की नीड है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो इन शेप ऑफ CC एंड OD, मतलब कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में मेरे को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो
असेसमेंट होता है कि भाई किस कस्टमर को मुझे कितना रुपया देना है, वो असेसमेंट हम करते हैं। सीधा आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि वर्किंग कैपिटल को कैसे असेस करोगे, किसी को कितनी देनी है, तो आपको बोलना है सर वर्किंग कैपिटल को ब्रॉडली हम जो हमारे जो लैंडिंग के मेथड है, ब्रॉडली हम उसको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज वो आप लिख सकते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं टर्नओवर मेथड, या फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं। 3 मेथड हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड कर रहे हैं, मेथड बहुत सारे हैं मगर जनरली उसको हम 3 मेथड में हम उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड टर्नओवर मेथड, इसको हम नायक कमिटी मेथड भी बोलते हैं, टर्नओवर मेथड या नायक कमिटी मेथड, यह है पहला मेथड। दूसरा हमारा जो टर्न इसका वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का जो दूसरी हमारा वो है, वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लैंडिंग, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, पहला है टर्नओवर मेथड या नायक कमिटी, सेकंड है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, इसको हम टंडन मेथड भी बोलते हैं। टंडन एंड चोरे ने ये कमिटी ने ये मेथड सजेस्ट किया था, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, और तीसरा है हमारा जो ये यूज करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको हम बोलते हैं कैश बजट मेथड, कैश बजट मेथड। ठीक है, बेसिकली ये 3 मेथड है। अब देखिए इसमें आपको इंटरव्यूअर को बस ये बताना है कि सर मेथड ऑफ लेंडिंग मेरे सर 3 होते हैं बेसिकली। बेसिकली हम 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्नओवर मेथड, सेकंड वन इज ट्रेडिशनल मेथड, थर्ड वन इज कैश बजट मेथड। तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, देखिए टर्नओवर मेथड जो होता है सर, वो अगर कोई भी सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट अप टू ₹5 करोड़ की सैंक्शन कर रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए तक का अगर मैं किसी को कैश क्रेडिट लोन या लिमिट दे रहा हूँ, तब मैं टर्नओवर मेथड को इस्तेमाल करूंगा, यूज कर। ठीक है सर। सेकंड है मेरा ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कोई भी लिमिट अगर मैं 5 करोड़ से ऊपर की दे रहा हूँ, जहां पर Sharma ji, मेरा, sorry to interrupt. हाँ Abhina, I'll yes, have to send another link. So can we just give them a 5-minute break and then we can resume our class after 5 minutes? ओके सर। okay, है ना? From 9:45 we can resume. I'm sending the link. okay. So 3 methods are there. इनको इलेबोरेट करेंगे हम 5 मिनट बाद जब भी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है सर। जी, thank you Okay, sir. Sharma ji, thank you. Okay.